Now let's see question number 27. Following is an extract of the balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2020. Liability side, Neelkant capital is given 10 lakh rupees. Then Mahadev's capital is given 10 lakh. Neelkant's current account 1 lakh. Mahadev's current account 1 lakh. Profit and loss account 2019-20 8 lakh rupees. Sundry assets on asset side is given as 30 lakh rupees. During the year, Mahadev drawings were 30,000. Profit during the year ended 31st March 2020 is 10 lakh rupees. Calculate interest on capital at the rate of 5% per annum for the year ended 31st March 2020. See, we can see that this is the case of fixed capital account, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है. सो अगेन इफ यू रिमेंबर पार्टनर्स कैपिटल में आपके सिर्फ 4 आइटम्स ही आती हैं. डेबिट साइड में कौन सी आती हैं? परमानेंट ड्रॉइंग्स एंड क्लोजिंग बैलेंस. एंड क्रेडिट साइड में ओनली ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल. सो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल हमको नहीं दिख रहा और परमानेंट ड्राइंग भी नहीं है. लास्ट में जो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर 30,000, दैट इज रेगुलर ड्राइंग. अगर ये लिखा होता कि आउट ऑफ कैपिटल तो वो हमारी ड्राइंग्स होती परमानेंट ड्राइंग्स, बट इट इज नॉट मेंशन, सो दिस इज रेगुलर ड्राइंग. तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. 10 लाख के ऊपर ही हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लगाकर कैपिटल हम लोग इसका आईओसी कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड. So closing capital is already given in the question. We prepare 2 columns here, one for Neel, one for Mahadev. So Neel, Mahadev. So closing capital is given as 10 lakh rupees each. 10 lakh, 10 lakh. Simple. IOC rate is given. IOC rate is given as 5%. So 5% on 10 lakh rupees. IOC at the rate of 5% per annum. So 10 lakh into 5 upon 100. That comes to 50,000. Same for Mahadev, 10 lakh into 5 upon 100. That comes to 50,000. This is our IOC. 50,000 for Neel and Mahadev again 50,000 rupees. Now next question. Question number 28. Question number 28. From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2020. Again, closing balances are given. We have to find out opening balance first to calculate interest on capital. So this is balance sheet. Long's capital is given 1,20,000. Short's capital is given as 1,40,000. Journal reserve 1 lakh. Fixed assets 3 lakh. Other assets 60,000. During the year, long withdrew 40,000 and short withdrew 50,000. ये इनकी drawings दी हैं, regular drawings. Profit for the year was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. This is important. Profit for the year, टोटल प्रॉफिट कितना दिया आपको 1,50,000, जिसमें से आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ये जो आपको जनरल रिजर्व यहाँ लाइबिलिटी में दिख रहा है, ये यही 1 लाख है. दैट मीन्स 1,50,000 में से 1 लाख को ऑलरेडी फर्म ने एडजस्ट कर दिया है. तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 50,000. तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, जो हम इनको एडजस्ट करेंगे, इनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं, प्रॉफिट जो दिया हुआ है, तो वो 50,000 को एडजस्ट करेंगे. नाउ लेट्स सी ऑन द बोर्ड द कैलकुलेशन. नाउ क्लोजिंग बैलेंस is given. Closing capital, again we will draw 2 columns, one for long, one for short. Long and short both are partners in a firm. So their closing capital is given as 1,20,000 for long and 1,40,000 for short. Now what we will do, drawings as I said, drawings long withdrew 40,000, short withdrew 50,000. तो drawings को हमें क्या करना है, वापस इसको ऐड करेंगे. So add drawings. long में कितनी दी हुई है आपको 40,000,
एंड शॉर्ट में आपको दी हुई है 50,000, राइट। टोटल करते हैं यहाँ पे पहले इसका 1,60,000, 1,90,000, ये आ गया यहाँ तक का टोटल। नाउ प्रॉफिट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। Profit for the year was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to journal reserve. आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी जनरल रिजर्व 1 लाख दिया है। बैलेंस शीट में आने का मतलब ही यही होता है कि फर्म ने उसको एडजस्ट कर दिया है। जो आइटम बैलेंस शीट में आ गई है दैट मीन्स उसको ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है, हमें उसको कुछ नहीं करना। बट प्रॉफिट अब कितना बचा, 1 लाख आपने ट्रांसफर कर दिया आउट ऑफ 150 टू जनरल रिजर्व, दैट मीन्स 50,000 इज अवर प्रॉफिट। जिसको अब इस क्वेश्चन में देखो आपको रेशो कहीं मेंशन नहीं करी है, दैट मीन्स रेशो क्या हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो गई। तो यहाँ पे 25,000 हम माइनस करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, जो चीजें आप ऐड करते हो उनको माइनस करोगे। इफ यू रिमेंबर पार्टनर्स कैपिटल अपने माइंड में इमेजिन करो, पार्टनर्स कैपिटल में आप प्रॉफिट को उनको ऐड करते हो क्रेडिट साइड में, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग बैकवर्ड चल रहे हैं। तो जिन चीजों को हम ऐड करते हैं उनको माइनस करेंगे, जिन चीजों को हम माइनस करते हैं उनको हम ऐड करेंगे। दैट इज वाई यहाँ पे ड्रॉइंग्स को हमने ऐड किया। प्रॉफिट अगेन मैं आपको बता रही हूँ 150 आपका टोटल दिया हुआ था, जिसमें से आपने 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिया टू जर्नल रिजर्व। तो जो आपका रिमेनिंग बचा 50,000, ये आपका जो है ये है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप इसको 1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो माइनस प्रॉफिट 50,000 था, अगर मैं इक्वल करती हूँ 25,000 एंड यहाँ पे भी आ गया आपका 25,000। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, राइट। ये आपका आ गया 1,35,000 और यहाँ पे आपका आ गया 1,65,000, राइट। अब दिस इज अवर ओपनिंग कैपिटल। अब इसका देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे आईओसी। ओपनिंग कैपिटल ये आपका आ गया। नाउ ओपनिंग कैपिटल लॉन्ग्स आईओसी 1,35,000 into rate of interest is 8%, 8/100। ये आप करोगे सॉल्व, दिस विल 10,800। सेम वे हम लोग शॉर्ट का भी निकाल लेते हैं। शॉर्ट्स आईओसी 1,65,000 into rate of interest is 8%, this will come to 13,200। ये आपकी आईओसी आ गई। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, ड्रॉइंग्स आर गिवन। प्रॉफिट आपको बोला है 1 लाख जो है आपने आउट ऑफ 150 टोटल आपको 1,50,000 दिया हुआ है प्रॉफिट, जिसमें से 1 लाख आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो कहाँ पे, टू जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व में जब आपने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपीज, तो 50,000 आपका प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ 50,000 को हमने इक्वल रेशो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वल रेशो में क्यों किया, बिकॉज नो रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन दैट मीन्स कि वो आपका इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। ये आपने एडजस्ट किया 1,35,000, यहाँ पे एडजस्ट किया आपका आ गया 1,65,000। इसके ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको आईओसी दी है वो हमने लगा दी, आपका ये आईओसी अमाउंट आ गया। ये आपके जो है आईओसी अमाउंट आ गए, राइट। नाउ moving towards next question, that is question number 29. Question number 29. Molly and Bholi contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. This is important question, children. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3 and the net profit for the year is 1,500. Show distribution of profits. Now two cases are given. First case, when there is no agreement except for IOC, and second case when there is an agreement that the interest on capital as a charge. अब इसमें बहुत huge difference है दोनों केसेस में। फर्स्ट केस में वो आपको क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में मेंशन है कि आपको देना है, और सेकंड केस में क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है एज चार्ज
क्या होता है, चार्ज होते हैं एक्सपेंसेस, जिनको आप एक्सपेंसेस कंसिडर करते हो, जो फर्म को पे करने ही करने हैं, वेदर फर्म इज इन लॉस और प्रॉफिट, लेकिन फर्म वो पे करेगी ही करेगी, देयर इज नो एक्सेप्शन। बट यहाँ पे फर्म क्या बोल रही है कि फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, आईओसी नॉर्मल है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आप उसको दो। इन केस अगर प्रॉफिट होगा तो आप दोगे, लाइक एप्रोप्रिएशन आप तभी करते हो जो प्रॉफिट होता है। बट सेकंड केस में व्हाट दे आर सेइंग कि आपको देना ही देना है, चार्ज जहां पे वर्ड आ गया दैट मीन्स आपको पे करना ही करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो मोली, वी विल मेक टू कॉलम, मोली एंड होली। Moli's capital is given as 20,000 rupees and Holi's capital 10,000 rupees. Rate of interest is 6%. This is IOC. 6%. And 10,000 into 6 upon 100. So IOC, Moli's IOC is 1200, Boli's IOC is 600. Net profit is given as rupees 1500, right? 1500. And total of IOC, अगर हम देखेंगे इन दोनों का टोटल कितना है, so 1200 plus 600 total comes to 1800, whereas our profit is only 1500. अब इसको हम कैसे दें, फर्स्ट केस की हम लोग बात कर रहे हैं, केस नंबर 1 जो आपका ए दिया हुआ पार्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, बाय व्हाटएवर इज गिवन हम लोग पहले लिख लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 1500। अब प्रॉफिट है 1500, आईओसी हमारी बन रही है 1800, कैसे दे, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फर्स्ट केस में सिर्फ इतना बोला, एग्रीमेंट है कि आपको आईओसी पे करना है, बट प्रॉफिट सफिशिएंट ही नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इनकी आईओसी रेशो है, जो 1200 और 600, हम लोग इसकी रेशो निकालेंगे, मींस हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालेंगे। तो एप्रोप्रिएशन आप कितना कर रहे हो, 1200:600, यही एप्रोप्रिएट करे ना, मोली एंड भोली। तो यहाँ पे जो आपकी रेशो बनेगी वो आप देखो दोनों के 6 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप 2:1 की आपको जो नई रेशो आ जाएगी, दिस इज योर एप्रोप्रिएशन रेशो। आप इस रेशो में अब आप क्या करोगे, इस 1500 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 1500 अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, तो आपका आ जाएगा 1000, और ये आपका किसका आ गया, मोली का, और भोली का आ जाएगा आपका 1500 इंटू 1/3, तो आपका आ गया 500। सिंपल, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब नेट प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं हो, आपने आईओसी देखा, टोटल आपका आ रहा है 1200 प्लस 600, 1800 टोटल आ रहा है, बट फर्म के पास सिर्फ 1500 ही है देने के लिए, तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो भी आप एप्रोप्रिएट कर रहे हो उसकी एक रेशो निकाल लेते हैं। तो एप्रोप्रिएट हुआ है यहाँ पे 1200 600, तो हमने इसकी रेशो निकाली, 2:1 की रेशो आपकी आ गई। अब 2:1 की रेशो में हमने 1500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 मोलीज कैपिटल अकाउंट, 2 भोलीज कैपिटल अकाउंट। आप ये फिगर यहाँ लिख लोगे, 1000 एंड 500 आपकी भोले की, इसको क्लोज कर देंगे, 1500, यहाँ पे भी आपका आ गया 1500। दिस इज केस नंबर 1। अगर वहां पे नॉर्मल आपको लिखा है कि आपको जो है डीड में मेंशन है कि आईओसी देनी है, बट जब आपने देखा कि प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से, तो आपने एप्रोप्रिएशन की रेशो कैलकुलेट कर ली। एप्रोप्रिएशन की रेशो कैलकुलेट करने के बाद उस रेशो में आपने जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ केस नंबर बी, अगेन हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, कॉलम्स बना लेंगे हम लोग 4 कॉलम्स, बाय नेट प्रॉफिट 1500 रुपीज, यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया,
नाउ दे आर सेइंग कि आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो। चार्ज वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे। चार्ज वर्ड यूज करने का मतलब यही है कि वो इसको एक्सपेंस मान के चल रहे हैं। तो आपको 1500 को जो है क्या करना है, आप 1500 प्रॉफिट दिखाओ यहाँ पे, और नॉर्मल जो उनकी आईओसी बन रही है, जो इनकी 1200 600 आप वो दिखाओगे यहाँ पे। टू मोलीज कैपिटल अकाउंट, टू भोलीज कैपिटल अकाउंट। 1200 आपका आया था यहाँ पे फिगर, और यहाँ पे 600। आप एज इट इज उसको सेम दोगे, क्योंकि देना ही देना है। फर्म ने बोल दिया चार्ज मान के चलेंगे आईओसी को, तो हमें देना ही देना है इसको। तो अब हम इसको यहाँ देखते हैं, ये हमारा आगे टोटल 1800, ये आगे आपका टोटल 1800 अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। अब ये 300 का क्या करेंगे, तो शॉर्ट हो रहा है 300 रुपीज। तो ये जो 300 लॉस आया, जो ये लॉस आया, ये भी अब हम पार्टनर्स को बोलेंगे कि आप अब इसको पे करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय लॉस। जब प्रॉफिट आते हैं, इफ यू रिमेंबर एप्लीकेशन में आप इस साइड दिखाते हो, राइट। अब आप इधर, जब आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो जो लॉस है वो भी पार्टनर को ही आप डेबिट कर दोगे। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू, पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, मोलीज कैपिटल अकाउंट, भोलीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, एप्रोप्रिएशन रेशो में? नो, जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दी है, आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द क्वेश्चन इज गिवन एज 2:3। तो 2:3 जो आपकी है वो रेशो है नॉर्मल, ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। आपको 1500 जो आपका, आपने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, आपने फिर उसके बाद आईओसी दिखाई यहाँ पे। अब जो ये बैलेंस आया आपका 300 रुपीज, ये आप इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो कर देते हैं इसको, ठीक है। 300 रुपीज को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 300 ये आपका लॉस है, ठीक है। 300 इंटू 2/5, राइट। 5 6 तो यहाँ पे आपका आ गया 120 एंड 180। सो 120 एंड 180, ये आपका लॉस आया। 300 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका लॉस किसका आया है, मोली का, और भोली का भी आप कैलकुलेट कर ही लोगे। 300 इंटू 3/5, ये आपका आ गया 180। सो 180 जो आया आपने वो दे दिया भोली को। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दो केसेस से। फर्स्ट केस में नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था फर्म का पार्टनर्स के साथ कि हाँ ठीक है हम आपको आईओसी पे कर देंगे, बट जब फर्म के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं करती है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर वो प्रॉफिट्स है ही नहीं तो कहाँ से पे करेगी। बट एक आपको केस और दे दिया, फर्म बोलती है कि ठीक है हम इसको चार्ज मान के चल रहे हैं। जब चार्ज मान के चल रहे हैं, पार्टनर को देना ही देना है पैसा, तो अब हम क्या करेंगे, जब सफिशिएंट पैसा नहीं है तो आप आईओसी पहले दोगे, उसके बाद अपना प्रॉफिट यहाँ लिखोगे, जो भी डिफरेंस आ रहा है, लॉस जो है वो भी हम पार्टनर्स को अब बोलेंगे ठीक है अब ये जो पैसा है आपको डेबिट कर रहे हैं, अब आप इसको लॉस को बेयर करोगे, right? I hope this question is clear and this is very important question. Now, moving forward, question number 30, children, you will be doing on your own. And in the next video, I will be starting with interest on drawing, very interesting chapter. Till then, spread love and peace.